Good morning, students. Students, welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू प्रूव either it consistent or inconsistent. If the equations are consistent, then we have to obtain the solutions graphically. Understood? So first of all, see the question. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, find the solution graphically. Means we have to draw the graph. If the equations are consistent, did you understand? If the equations are consistent, then we have to draw the graph. Okay, so let's start. So first equation, x plus y equal to 6, then implies in a standard form x plus y minus 6 equal to 0. Second, 2x plus 2y, 2x plus 2y equal to 10. So that implies 2x plus 2y minus 10 equal to 0. So now a1 equal to 1, a2 equal to 2, b1 equal to 1, b2 equal to 2, C1 equal to minus, this is not 6, this is 5. Okay, so this is 5. Okay, so C2 equal to minus 10. So therefore a1 upon a2 equal to 1 upon 2, b1 upon b2 equal to 1 upon 2, c1 upon c2 equal to, it is also minus 5 upon minus 10 minus 5 1 ja 5 2 ja equal to 1 upon 2. See carefully. So therefore 1 by 2 equal to 1 by 2 equal to 1 by 2, then implies a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Therefore the graph of, so therefore the pair of linear equations are consistent. All of you try to understand. Consistent because it has many solutions. This is the example of many solutions. All three ratios are equal. Understood? So now it is consistent, so we have to draw the graph. Understood? So for graph, now equation 1 and this is equation 2. So for graph, first of all we try to draw
try to make a table. So for equation 1, x plus y minus 5 equal to 0, then implies 5, so x equal to 5 minus y. Mark the equation 3. Now make a table. Okay, so this is x and this is y. So first of all you take y equal to 1. So x equal to 5 minus 1 equal to 4, y equal to 1, so x equal to 4. Now take y equal to 2, so x equal to 5 minus 2 equal to 3, so 2, so 3. Okay, now from equation 2 is 2x plus 2y, 2x plus 2y minus 10 equal to 0, so 2x plus 2y equal to 10, so then implies 2x equal to 10 minus 2y, so then implies x equal to 10 minus 2y by 2. So again make a table. X and this is y. So now I am going to take y equal to 1. Okay. So when you take y equal to 1, so x equal to 10 minus 2 into 1 by 2. So 10 minus 2 by 2, so 8 by 2. So this result is 4, y1 x4. Okay, 4. Now similarly I am going to take y equal to 2, y equal to 2, so x equal to 10 minus 2 into 2 by 2, so 10 minus 4 by 2, so 6 by 2, so this is equal to 3, y2, so x3. Understood about this? अब आफ्टर दिस यहाँ पर मैंने 2 टेबल तैयार कर लिया. नाउ वी हैव टू represent these points on Cartesian planes. Okay, so now draw a Cartesian plane. देखते हैं क्या होता है. ये O या 0 origin and now 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and minus 5. And now this is y axis. बेटर के लिए ये सब लिखना जरूरी है. माइनस y axis, this is x axis, this is minus x axis, x axis. Okay, now plot the points. So x equal to 4 and y equal to 1.
x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1, तो y के पैरेलल and this point is x equal to 4 and y equal to 1. Now second point is x equal to 3 and y equal to 2. X equal to 3, so now draw a parallel. अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ग्राफ शीट है तो ये प्लॉटिंग की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड है। 3 2, अगर आपके पास ग्राफ शीट है तो नो नीड टू प्लॉट डॉटेड लाइन। ग्राफ शीट में तो ऑलरेडी लाइन ड्रॉन रहता है। तो ये व्हाइट पेपर के कारण ये हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये मिला दिए। इसको आगे की ओर थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको भी थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ लेकर चले जाएंगे। ये हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ। नाउ सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 10 या 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सेकेंड का प्लॉटिंग करते हैं। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, सेम पॉइंट, all of you try to understand same point। x equal to 3, y equal to 2, x 3 तो y 2। अब देखो ना, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स हम लोग लिए हैं तो ये सेम ही आ रहा है, तो फिर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पर ये ड्रॉ होगा, अंडरस्टूड। That means coincident lines. Okay, so if the lines are coincident, then the equations have many solutions. अब यार जब many solutions है तो each and every तो उसका solution है ही, जितना ले लो सब solutions है, तो उसे निकालना क्या है। ओके, तो यहां पर केवल हम लोग लिख देंगे कि द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस, ग्राफ्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस आर coincident, so it has many solution, इसलिए इसका many solution है। ये कंसिस्टेंट है लेकिन सॉल्यूशंस इसका कैसा है, तो मेनी सॉल्यूशन है। अब अगर देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर दोनों सेम पॉइंट क्यों ले लिए, ले लो ना एक दूसरा पॉइंट ले लो। देखो एक दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं कि y इक्वल टू, हम लोग 0 पॉसिबल है, 0 अगर लेते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है ले लेते हैं। y इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं तो x कितना होगा 10 माइनस, देखो ध्यान से 2 इंटू 0 बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 10 बाई 2 इक्वल टू 5, ये 5 हो गया। अब देखो जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया है तो यहां देखो ना ये लाइन आकर के यहां पर कट रहा है, ये यानी 5 0, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0। जितने भी पॉइंट्स तुम लोगे ऑल का ऑल उसी लाइन पर लाई करेगा। ऑल पॉइंट्स लाई ऑन दिस ग्राफ। अलग से कोई दूसरा ग्राफ नहीं बनेगा, ये बिल्कुल
क्लियर कट है, नो डाउट। ओके, सो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, बनाना होगा। ओके, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 8। सो देन इम्प्लाइज x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। So then implies 3x minus 3y minus 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो a1 a2, a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 3 है, b1 b2, b1 हमारा -1 है और b2 हमारा -3 है, c1 c2, c1 हमारा -8 है और c2 हमारा -16 है। सो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1/3 इक्वल टू 1/3 and c1 by c2 equal to -8 by -16, 8 1 जा 8 2 जा, so 1/2। So then implies a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and does not equal to c1 upon c2। Now it is clear that a1 upon a2, बोलो एनी प्रॉब्लम, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो 1/3 इक्वल टू 1/3 और डज नॉट इक्वल टू 1/2। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations are inconsistent। अब देखो अगर इनकंसिस्टेंट है यानी नो सॉल्यूशन, अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ पैरेलल आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसा नहीं कह रहा है कि ग्राफ बनाइए, अगर कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ बनाना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा यहीं पर पूरा हो गया। ओके, अंडरस्टूड अबाउट दिस? अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो क्या होता है, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -2, c1 इक्वल टू -6 and c2 equal to -4। So therefore a1 upon a2 equal to 2/4, so 1/2, b1 upon b2 equal to, अब देखो यहाँ पर b1 upon b2 1/-2 and c1 upon लिख देते हैं, जरूरत है नहीं, -6 by -4, 3 2 3/2। ओके, सो देयरफॉर अब यहाँ पर देखो 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/2,
So then implies A1 by A2 does not equal to B1 by B2. So it is consistent. अब ये कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट में भी यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिना निकाले हुए तो होगा नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सो देन इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 6 माइनस वाई। सो x इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। मार्क द इक्वेशन नंबर 3। अगर इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि x का ही वैल्यू निकालेंगे। यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y एज यू लाइक, जैसा आपको लगे आप कर सकते हैं। ओके, अब देखो y इक्वल टू, सबसे पहले g6 ले लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 बाई 2। सो 0 बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर टेबल बना देते हैं। x एंड y, तो हमने y6 लिया तो x हमारा कितना आ गया 0 आ गया। अब y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6 माइनस 4 बाई 2, 2 बाई 2 इक्वल टू 1। y अगर 4 लेते हैं तो ये 1 आ जा रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा है कौन सा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का टेबल। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 4x इक्वल टू 2y प्लस 4। सो x इक्वल टू 2y प्लस 4 बाई 4, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर पुटिंग y इक्वल टू अब क्या लेना है, तो यहाँ भी हम लोग y के जगह पर एक 0 ले लेते हैं। y अगर 0 ले लेते हैं तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। x इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4 बाई 4 इक्वल टू 4 बाई 4 इक्वल टू 1। y अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर एक और टेबल हम लोग बना लेते हैं, यहीं पर बना देते हैं, बगल में ही रहेगा, लिख देंगे ऊपर में xy। तो हम लोग y अगर 0 लिए तो x हमारा 1 आ गया, y अगर 0 लिए तो x 1 आ गया। अब देखते हैं y इक्वल टू 2 लेकर क्या होता है, तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 अब प्लस 4 अब बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू 8 बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, y अगर 2 ले रहे हैं तो हमारा x भी 2 ही आ रहा है। तो अब हमारे पास टेबल हो गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का। अब बस इसे प्लॉट कर देना है। तो प्लॉटिंग के लिए देखिए फिर हमें बनाना पड़ेगा, हालांकि लंबा डेटा कोई ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, इसलिए डोंट वरी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनस y एक्सिस हो गया, और ये हमारा माइनस x एक्सिस हो गया।
दिस इज 1 2 3 4। हमें लगता है कि 6 तक डेटा, हालांकि y वाल 6 तक है, तो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। 1 2 3 4, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6, क्योंकि 6 तक हमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखो पहले रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं। x = 0, y = 6, पहला हमारा यही पॉइंट है, ये 0 6। दूसरा है 1 4, x = 1, y = 4। देखो यहाँ से ये पैरेलल यहाँ गिरा देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा 1 4। अब ये हमारा रिजल्ट तैयार हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो। अब देखो ज्वाइन करने में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हम हमेशा कहते हैं कि रहेगा ही, क्योंकि देखिए ये लाइन बिल्कुल खींचने में आइडिया नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा देखिए, आगे देखते हैं दूसरे को प्लॉट करके। दूसरे इक्वेशन में है x = 1, y = 0, x = 1, y = 0, बस यही है हमारा, x = 1, y = 0। और नेक्स्ट हमारा है x = 2, y = 2, x = 2, y = 2। देखो ध्यान से, ये और यहाँ से ये जा रहा है, कटिंग तो यहीं पर हो जा रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आराम से हम लोग इसी को ज्वाइन कर दीजिए, ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, ये ऐसे कर दीजिए। यहाँ इसको ले आना है तो ले आइए, आगे की ओर बढ़ा दीजिए। देखिए ये जो कटिंग हो रहा है ये हमारा 2 2 पर हो रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशंस लिख देंगे, क्योंकि 4x - 2y, देखो यहाँ 4x - 2y - 4 = 0, और ये हमारा था 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। अब दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। अब यहाँ पर देखेंगे द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पॉइंट P कर देंगे, इंटरसेक्ट एट a point P, therefore P यहाँ पर लिख देंगे 2 2, therefore x = 2 and y = 2। okay, so hence x = 2 and y = 2 is the solution of the given pair of equations। इतना लिख दोगे, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। अच्छा देखो, एक बात और बता रहे हैं कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको इसी वे में क्वेश्चन को पूछे। एग्जाम में हो सकता है यू हैव टू ड्रॉ ओनली ग्राफ, केवल ग्राफ ही खींचना हो, या यू हैव टू शो ओनली कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल
घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू वेरी इजीली, आप बिल्कुल आसानी से इसे कर सकते हैं। और आपको एग्जाम में टाइम की भी कमी नहीं होती है अगर थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट पर अगर ध्यान दें। आपको एग्जाम में ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। सिक्सटी 60% क्वेश्चंस एवरेज होते हैं जो कि एनीवन कैन सॉल्व। हाँ, 10 to 20% क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, यानी वे 100% स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, तो हमें अगर 90 प्लस करना है तो हमें उस ट्रिकी क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग फोर्थ की तरफ मूव करेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। और देखो a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू माइनस 2, b2 इक्वल टू माइनस 4, c1 इक्वल टू माइनस 2, c2 इक्वल टू माइनस 5। सो देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 जा 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 4, सॉरी 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 जा, this is also 1/4, 2, and c1 by c2 minus 2 by minus 5, minus minus cancel, so 2/5. अब now the result is clear. a1 by a2, 1 by 2 equal to 1 by 2 does not equal to 2/5, does not equal to 2/5. So then implies a1 by a2 equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2. Okay, so therefore the pair of equations are inconsistent. ओके, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अब जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस में 2 हमारा कंसिस्टेंट था और 2 इनकंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट का हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकाला और इनकंसिस्टेंट का हमें निकालना नहीं है। अंडरस्टूड? तो अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं, लेकिन एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को देखते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। अगर तुम ऐसा करते हो तो आगे आप लोगों को और अच्छी से अच्छी वीडियो देने का प्रयत्न करूँगा। वैसे तो मैं शुरू में ही ये वादा कर चुका हूँ कि मैं पूरे कोर्स को 6 मंथ में
फिनिश्ड कर दूंगा, और मैं उस पर कायम भी हूं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। ओके, सो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।